Ms. Swaminathan. Dr. Soumya Swaminathan. Yeah, Soumya Swaminathan. She's the daughter of the legendary Bharat Ratna, Sir M.S. Swaminathan, sir, who got the Green Revolution. This is Dr. Ashok Singh ne bataya, Harit Kranti. And he also talked about Norman Borlaug. I remember attending that event at Gyan Bhavan. Okay. So we just want a brief, ma'am. You could just give us the main, bullet points Of the conference, yes. Yes. Yeah. So August 7th, 2025 is my father's birth centenary. He was born in 1925. So to commemorate his almost 98 years of contributions to agriculture, to biodiversity, to science, to global policies, as well as, of course, national policies, and also his visionary thinking that he had for the future of agriculture, but much broader than that. Future of health security, future of nutrition security. We thought that this is a timely moment to not only reflect on the past and his legacy and his achievements. Of course, many people will speak about those things, but more importantly, to reflect on where we are today in terms of the threats that are facing the world. There's climate change, there is conflict, there is post-COVID economic issues in many countries, and we need to find a path forward which has to come through collaboration, through partnerships, and through advances in science. So the 3-day conference will have a very large number of international and national scientists participating, particularly young scientists. We will also have 300 farmers from all corners of the country. We have over 400 students who have registered for this, and they will be presenting their work as posters. Plus we will have, of course, representatives from global bodies like FAO, UN Environment Programme, UN Food Programme, UNEP, as well as farmers associations from other parts of the world, and the CGIAR system at a very high level is being represented at this conference. So I think that we will be able to come out with a call to action on the 3rd day, which will be the path forward for the globe as a whole. And I think I would just add, to make it very simple, the Prime Minister Narendra Modi ji is going to inaugurate this on the 7th, and the Postal Department is bringing out a coin and a stamp, a postal stamp. Yes. So I can imagine what it could be. And also there is an award which they've started. This is the $25,000 award. Yes. It's going to be a global award every year. For scientific contributions that enable food and peace globally. But only they are young scientists from under 50 years, and they have to be from a developing country. Okay. Thank you very much, ma'am. And I wish that everybody is watching this. So we'll give you the rest of the story with the press conference update, and we'll give you the story coming days. And it will be available on YouTube links. Thank you so much, ma'am. Thank you. To everybody, to the media briefing. So I am Dr. Soumya Swaminathan. I am currently the chair of the M.S. Swaminathan Research Foundation. ये जो कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन के सेंटिनरी मनाने के लिए on August 7th, 2025, which would have been his 100th anniversary. So we are celebrating it, his legacy, his contributions, and I would say that I will hand over to DG ICR and Secretary there first, because ICR was an IARI, was where my father actually did all his major work and contributions. And in fact, right here in these grounds is where the fields were, where he did his initial work in the 60s, and then of course later as DGICR and other contributions that I think our other experts here will collaborate on. So I just wanted to welcome you all and also thank everyone who has been working for this conference. It's a partnership actually, so of course MSSRF, but also the ICAR, the Indian Agricultural Research Institute, IARI, they have been the ones really putting in a lot of effort on the ground, and the Ministry of Agriculture, Minister had agreed to be the chief patron, Mr. Shivraj Singh Chauhan. So
and the National Academy of Agriculture and Sciences, where we are now seated. These organizations have come together to organize this over the next 3 days, starting on August 7th, and then till 9th. It is going to be scientific feast to really discuss the current issues and challenges and find the path forward. So with that, I'd like to hand over to Dr. Jack to address the gathering. थैंक यू सौम्या जी, डॉक्टर ए.के. सिंह जी, मेरे सभी मीडिया के साथी। हम भारत के एक महान सपूत की सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 अगस्त को, परसों। ऐसा सपूत, ऐसा महान सपूत जिन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, खेती किसानी के लिए जो योगदान किया है, उसको आने वाली कई पीढ़ियां भूल नहीं सकती। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आदरणीय डॉक्टर स्वामीनाथन जी हर जगह, हर समय, हर कोने में हमारे साथ, आज भी साथ। वो यहाँ पे, वो वहाँ पे, वहाँ पे, वो हर खेत में है, वो हर किसान के साथ में है। उनका योगदान हरित क्रांति, हिंदुस्तान में जब हम खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय जो क्रांति आई और वो जो नींव रखी गई, उस नींव के कारण से आज हम जहाँ पे हैं, आज हमारा देश बहुत प्राइड लेता है कि हम फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री हैं। आज हम 354 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, इस साल का जो आंकड़ा है, और पिछले 1 साल में हमें 22 मिलियन टन बढ़ाया है। ये जो बढ़वार है, इसकी नींव उसी समय रखी गई। लेकिन सिर्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने की कोई हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे आयाम जो खेती में हैं और भविष्य की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो हम जब उनकी सेंटेनरी जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ सेलिब्रेशन उसी का नहीं है जो हमने अकम्प्लिश किया, हम भविष्य की रूपरेखा भी बनाने जा रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत सारे मंथन होने हैं, और उनमें खेती में टिकाऊपन कैसे लाया जाए, पर्यावरण परिवर्तन की जो समस्या है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी कैसे ठीक की जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो हमारा सॉइल हेल्थ है, चाहे बाकी जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए, और आगे का एक्शन प्लान हमारा क्या हो। तो इस पे ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में इस पे चिंतन मंथन होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स इसमें आएंगे, और सिर्फ प्रोडक्शन की और उसकी बात नहीं है, पॉलिसी में क्या हमें चेंजेस की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और हम प्रोफेसर स्वामीनाथन जी की लेगेसी को आने वाले कई सदियों तक आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ताकि वो हर समय हमारा मार्गदर्शन, वो जहाँ पे भी हैं कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं। इसके ऊपर ये कार्यक्रम हम करने वाले हैं 3 दिन, परसों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको शुरुआत करेंगे। उसके अलावा अलग अलग देशों के नेता, जो कृषि मंत्रीगण, दूसरे अधिकारीगण, नीति निर्धारक, सभी लोग यहाँ पे आके और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम हमारी खून में है, तो हम सिर्फ अपनी चिंता नहीं कर रहे। संस्थान से हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन साहब ने उनका मास्टर्स हमारा संस्थान से किया है 1947 से 1949 तक।
जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से किया है। उसी टाइम से लेके बीच में 3 साल वो बाहर गए थे पीएचडी के लिए। उसके बाद हमारा संस्थान में वापस आए 1954 में। 1954 से 1972 तक हमारा संस्थान में थे। पहले साइंटिस्ट थे, वो 7 साल साइंटिस्ट थे। उसके बाद हमारा संस्थान को निदेशक बन के कार्यक्रम किए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम ये था, अभी डीजी साहब ने भी बोला, हमारा फार्मर डायरेक्टर IRI ने भी बताई, स्वामीनाथन साहब का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन। उस टाइम ये प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब का ये विजन था, कैसे बेकिंग गोल्ड स्टेटस इंडिया में थे। अब उस टाइम हमारे पास खाने नहीं थे, उसको कैसे सबको खाना खिलाएंगे। इट वॉज द मेजर कंसर्न ऑफ प्रोफेसर स्वामीनाथन। आप सबको उनका बायोग्राफी किसी लोगों ने पढ़ाए होंगे। प्रोफेसर स्वामीनाथन को फादर मेडिकल डॉक्टर थे। प्रोफेसर स्वामीनाथन इसलिए एग्रीकल्चर को सेलेक्ट किए थे, उस टाइम बंगाल गवर्नमेंट था, उससे वो बहुत अफेक्ट हुए। वो उनसे मन से उसका इम्पैक्ट बहुत था। इस कंट्री को इस टाइप का फेमिन से कैसे बाहर लेके आएंगे, उसके लिए काम करना है। उसके तरफ से प्रोफेसर स्वामीनाथन इधर से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना कार्य किए। सिमरेट में नॉर्मन बोरलॉग नोबल ला रहे, उनसे कोलाबोरेट करके इंडिया में हरित क्रांति लेके आने के लिए पहले सीड उधर से लेके आए। वो सीड लेके आके उसको कैसे ब्रीडिंग करना, कैसे इंप्रूव करना, इंडियन कैसे कंडीशन के लिए कैसे अडाप्ट करना, उसके ऊपर वो रिसर्च किए। उन्होंने सरपति सोनारा वैरायटी रिलीज किए, कल्याण सोनाली के वैरायटी हमारा इंस्टीट्यूट से रिलीज हुआ। सिर्फ वैरायटी को अकेले वो नहीं लेके गए थे, वो सारा इंटीग्रेटेड अप्रोच में बिलीव करते थे। उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी साथ में लिए थे। उसके अलावा उन्होंने सीड विलेज कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उन्होंने सोचा हम कोई भी रिसर्च करेंगे, किसान के खेत में डेमोन्स्ट्रेट होगा नहीं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जॉइंट विलेज में उन्होंने हमारा सीड ग्रीन रेवोल्यूशन सीड्स को डेमोन्स्ट्रेट किए थे। इस टाइप का मल्टीपल कार्यक्रम करके हमारा बेकिंग गोल्ड स्टेटस नेशन से अब सिक्योर नेशन बनाए थे। उसके अलावा उन्होंने उसी टाइम उन्होंने सोचा ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक बार से काम चलेगा नहीं। अभी हमारा फार्मर डायरेक्टर साहब ने बताया, अभी फ्यूचर प्लान्स टू नेशन विद ग्रेन्स नॉट विद गन्स। इसलिए प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1980s में उन्होंने ये बताया एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, उसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना है। उसके तरफ से उन्होंने बहुत सारा रिसर्च प्रोग्राम IRI में इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके द्वारा अभी हमारा देश अभी डीजी साहब ने बताया वैसे 354 बिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब के लिए हम प्रोफेसर स्वामीनाथन को बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने मिलियंस ऑफ यूथ्स को मोटिवेट किया। हम सब लोग डीजी सर और JK सिंह सर, हम सब उनको उनके पास में हमारा IRI में जाएंगे। उन्होंने एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। वैसे अभी भी स्टूडेंट्स IRI आते हैं, उसके एक रीजन प्रोफेसर स्वामीनाथन हमारा IRI में थे। उनका लीगेसी को हम आगे लेके जाने के लिए इंस्टीट्यूट पूरी तरह से काम करेंगे। किसान के साथ मिलके हम काम करेंगे, आगे लेके जाएंगे। इस शब्दों के साथ में मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके खेत पे करके दिखाना चाहिए, और ऐसा अगर हम करके दिखा सकते हैं तो बाकी सभी किसान कहेंगे कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये उनकी सोच थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में। और एक और एनेक्डोट मुझे याद है जो उन्होंने बताया था हमसे जब उनके साथ में म्यांमार करीब 10 दिन रहा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द हरित क्रांति कॉइन किया गया, विलियम एस गाउट ने कॉइन किया था, लेकिन यह शब्द क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहा गया, तो उसके बारे में बताते हैं कि जो पौधों का रंग हरा होता है और ये क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में यह क्षमता होती है कि वो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा को ग्रहण करके और केमिकल एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट बना करके उसको धान और गेहूं में कन्वर्ट करती है। तो इस वजह से इसका नाम जो है हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन रखा गया, जो अक्सर सुनने में नहीं मिलता है। उनकी सोच बहुत ही निराली होती थी, अलग होती थी और दूरदर्शी होती थी।